Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, class 3. Welcome class 3. Hope you are all fine. This is your class 3 book English. Okay. In my previous lesson we completed unit number 6, the lion and the mouse. We did the reading of that chapter. We did words meaning. I explained it to you and question answers also. I hope it is very clear to you. Now in today's lecture we will move forward and we will discuss about the grammar of that chapter. Okay, the first topic is antonyms. What are antonyms? Antonyms are opposites, means that words that have opposite meanings. You can see in the box detail is given. Antonyms are words that have opposite meanings, that are also called antonyms. ठीक है, यानी उर्दू में आप इनको उलट अल्फाज कहते हैं और ये आपको पता ही होगा, 1-2 क्लास में आप पढ़ चुके हो बच्चों. ठीक है, इन योर एक्सरसाइज नंबर 2 you can see antonyms or opposites are explained in the form of picture. पिक्चर के जरिए बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं. लुक, here is a word given big. बिग के साथ उन्होंने पिक्चर शो की हुई है लाइन की, जो कि ऑटोमेटिकली बहुत बिग है. उसका ऑपोजिट शो करने के लिए उन्होंने माउस दिखाया हुआ है. माउस इज स्मॉल, देन द ऑपोजिट ऑफ बिग इज स्मॉल. नेक्स्ट इज हॉट. टी इज हॉट एंड its opposite is cold. Picture is given over there. And in the next, black. To show the opposite of black, picture is given over there. Black is crow and the shirt is white. White is the opposite of black. Same is there. Day. To explain the picture, to explain the word day, picture is given over there. Day with the sun and night with the moon. Then the opposite of day will be night. इसी तरह happy, it is a happy face, smiley face, and this is sad face. It is the opposite of happy. So these are antonyms or opposites. ठीक है. The exercise on page number, you can see 45, exercise number 3. Rewrite the given sentences by changing the highlighted words with their opposites. Use the given words blank, back, bank. Okay, the words are given over there. You have to replace the colored word with this word, with these words to make it opposite. Okay, आपको ये different color में word given है, आपने इसका opposite लिखना है. To choose it from the above mentioned words. The mouse is fat. What will be the opposite of fat? Thin. The mouse is thin. Next is the light is on. On is in the different color. Then the opposite of on will be the light is off. यानी ये opposite है इसका. Okay. Now we will move towards the next page. Yes, the next word, next sentence is. The next sentence is the bus is slow. Slow is written in the different color. Then the opposite of slow will be the bus is fast. Next word is the giraffe is tall. Tall is mentioned in the different color. Then the opposite of tall will be, antonym of tall will be the giraffe is short. The next word is the lion is weak. Weak is mentioned in different color. The opposite of weak will be the lion is strong. Strong is the opposite of weak. The room is dirty. The opposite of dirty will be clean. Okay, these are the antonyms. Hope it is clear now. Antonyms are opposites. The words जो कि उस गिवन वर्ड का ऑपोजिट कहलाता है वो आपका एंटोनिम कहलाता है, ऑपोजिट कहलाता है. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 47. On page number 47, our first topic is consonant cluster under the heading of phonics. What are phonics? Phonics क्या होता है बेटे? Phonics आपकी pronunciation of English word, how you pronounce that word proper. आप किसी भी English word को कैसे proper तरीके से, अच्छे तरीके से उसको अदा करते हैं, उसको बोलते हैं, वो आपका phonics कहलाता है. Phonics के अंदर जो आपका first topic आ रहा है वो है आपका consonant clusters. अब
क्लस्टर्स क्या होते हैं बेटा? क्लस्टर्स होते हैं ग्रुप ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का ग्रुप जो होगा वो आपका क्लस्टर कहलाएगा, चाहे वो स्टूडेंट्स का ग्रुप हो, चाहे वो स्टार्स का ग्रुप हो, किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ का जो ग्रुप होगा वो आपका क्लस्टर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर की। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स बेटा आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स आपके वॉल्स हैं, ओके, कुछ अल्फ़ाबेट्स आपके वॉल्स हैं, A, E, I, O, U। रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। जो आपके बाकी के अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जब भी ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स की फॉर्म में आएंगे, ग्रुप की फॉर्म में आएंगे और उनके दरमियान में कोई आपका वॉल साउंड नहीं आएगी तो वो आपका कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाता है। और कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? टू मेक आवर वर्ड फ्लुएंट, सो वी कैन स्पीक दैट वर्ड वेरी फ्लुएंटली, वेरी इजीली, ठीक है। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो जिनकी इंग्लिश ही स्पोकन होती है, वो अपने उन वर्ड्स को बहुत स्पीड में बोलते हैं और बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, तो वहाँ उनके बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स बनते हैं टू मेक दैट वर्ड वेरी फ्लुएंट, ओके। इसलिए वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहलाते हैं। आप यहाँ नोटिस करें, कुछ आपके इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होते हैं, यानी स्टार्ट के जो अल्फ़ाबेट्स होंगे जो ज्वाइन करके आएंगे टू कॉन्सोनेंट्स की फॉर्म में, लेकिन उनके मिडल में कोई वॉल साउंड नहीं आएगी, उसको हम एक साथ स्पीड में पढ़ेंगे, क्लस्टर की फॉर्म में पढ़ेंगे, तो वो हमारा इनिशियल कॉन्सोनेंट कहलाएगा, ठीक है। लुक, SL की फॉर्म में जो आपका इनिशियल कॉन्सोनेंट आ रहा है, SLEEP, स्लीप, यू नोटिस्ड, S और L ये आपके दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। बिटवीन दीज टू कॉन्सोनेंट्स नो वॉल साउंड इज और वॉल अल्फाबेट इज गिवन, सो दिस इज इनिशियल कॉन्सोनेंट। स्लीप, वी मेड इट वेरी क्लियर इन अ वेरी फ्लुएंट स्पीड, ठीक है। मैंने इसको तोड़कर नहीं बोला स्लीप, इस तरह मैंने नहीं बोला, बल्कि हमने इसको फ्लुएंटली बोला है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ इनिशियल कॉन्सोनेंट, ओके। अनदर एग्जांपल विद द फाइनल कॉन्सोनेंट इज EST। आपने देखा है एंड में दो क्लस्टर्स आपके कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा इनके मिडल में कोई भी वोल अल्फाबेट यूज नहीं किया हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। हम इसको फ्लुएंट बोलते हैं बेस्ट। हमने स की साउंड को भी स्मॉल कर दिया और टी की साउंड पर फोकस कर दिया, बेस्ट। हमने बस बेस्ट, हमने इसको लटकाया नहीं है, ना ही इसको प्रोलॉन्ग किया है, हमने बहुत स्लो करके और फ्लुएंटली बोला है, तो ये आपका फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं, फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं। व्हेन वी डू दिस एक्सरसाइज देन यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। Write the words with the consonant clusters in the correct column. The words are given to you and you have to put it in the correct column. The first column is given initial consonant cluster. Initial consonant मैंने already आपको बताया है, start के 2 clusters होंगे, उस word में start के 2 clusters होंगे, but उनके middle में कोई भी vowel sound नहीं आएगी, तो वो आपके initial consonant होंगे। For example, tray, T-R-A-Y, tray, you notice TR ये initial consonant है, because in the middle of these 2 consonant clusters no vowel sound is given, no vowel word is given, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन द इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ओके। ट्रे, TR को हमने ज्वाइन करके बोला टू मेक इट फ्लुएंट, ठीक है। इसी तरह स्पैरो, आपने देखा है स्टार्ट का SP, इसके मिडल में भी कोई आपका वर्ड नहीं गिवन, तो इसलिए हमारा ये वर्ड भी इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर में आएगा, बिकॉज एंड में आपके कोई भी 2 क्लस्टर्स नहीं है। एंड में अगर 2 क्लस्टर होते तो हम फिर इसको फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर में इसको पुट कर सकते थे, दैट्स व्हाई इट इज गिवन इन द इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। नेक्स्ट वर्ड इज गल्प, यू नोटिस्ड at the start of this word no 2 alphabets, no consonant clusters is given. At the end of that word 2 clusters are given, and between these 2 consonant clusters no vowel alphabet is given, so we put it in the final consonant cluster, ठीक है। इसी तरह बैंड, यू नोटिस स्टार्ट में हमारा कोई भी 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर नहीं है, एंड में हमारे 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं, जिसके मिडल में कोई भी हमारी वर्ड नहीं किया हुआ, नहीं डाला हुआ, इसलिए हमने इसको फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड हमारा ट्रेन। ट्रेन में आपने देखा एंड में कोई 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर नहीं है, स्टार्ट में 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर है TR, तो वी विल पुट इन द इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। नेक्स्ट है हमारा रेस्ट। आपने देखा है स्टार्ट में कोई 2 इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर नहीं है, क्योंकि स्टार्ट के 2 वर्ड्स 1 कॉन्सोनेंट एंड 1 वॉल अल्फाबेट है, तो हमने तो ये कहा कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर हमेशा 2 कॉन्सोनेंट से मिलकर बना होता है, ग्रुप ऑफ 2 कॉन्सोनेंट से, तो ग्रुप ऑफ 2 कॉन्सोनेंट्स हमारे एंड में आ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल पुट इन द फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। आपको समझ आ गई होगी, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स ग्रुप ऑफ 2 और मोर कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स होते हैं, जो कि ज्वाइंट होते हैं, कंबाइंड साउंड के साथ हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई भी वॉल साउंड प्रोनाउंस नहीं होती, ओके, अंडरस्टूड। Our next topic is
very important topic is pronouns and joining words. Pronouns are the words which we use in place of noun. ऐसा वर्ड बेटे जो कि हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बोलती हूँ, अली इज अ गुड बॉय। ओके, नेक्स्ट मैं अली को बुलाने के लिए कहती हूँ, ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब आपने नोटिस किया मैंने अली की जगह पर जो वर्ड यूज किया है वो मैंने ही यूज किया है। It means the word which I use in place of noun is called pronoun. Okay, I used he. इसी तरह अगर मैं गर्ल नेम यूज करूंगी तो उसकी जगह, जैसे सारा यूज किया तो सारा की जगह मैं शी लगा दूंगी। नॉन लिविंग थिंग में यूज कर रही हूँ, चेयर इज बिग या कंफर्टेबल। ओके, तो उसकी जगह मैं क्या यूज करूंगी, इट यूज कर लूंगी। ठीक है, these are words which we use in place of noun are called pronouns. Next topic is connectors. Very important topic बेटे। joining words हैं, connectors हैं, ये बहुत important topic है आपका, जो कि हम आपको मैं इस स्लाइड के जरिए दिखाती हूँ, जो बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। ज्वाइनिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटे जो टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को और टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब भी आप, वेन एवर यू यूज पिक्चर डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ राइटिंग, or any summary or any paragraph you want to write, you can use these connectors to make your paragraph or to make your picture description presentable. ठीक है, आप उसको बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से उसको लिखने की, ये उस चीज़ की क्वालिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने पैराग्राफ राइटिंग में, आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, ताकि आप जब भी पैराग्राफ राइटिंग करो, पिक्चर डिस्क्रिप्शन करो, तो यू हैव टू यूज़ दीज कनेक्टर्स। ठीक है, ताकि आपका रिटन एक्सप्रेशन और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, अपीलिंग हो जाए टीचर के लिए भी, और इससे आपकी टीचर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके, नंबर 1 इज एंड। We commonly use this word. Why this word is used? It is used to show the similar ideas. जब भी दो sentences में बेटा similar ideas use किए जा रहे होते हैं, एक जैसे ideas use किए जा रहे होते हैं, तो हम use करते हैं and. ठीक है, for example, Ali studied maths. Ali got good marks. You noticed in this sentence same ideas are shown. मैथ से ही रिलेटेड बात हो रही है, स्टडी से, उसी से रिलेटेड आगे बात हो रही है, उसी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया है कि उसी में उससे अच्छे मार्क्स लिए। तो आपने देखा सेम आइडियाज है, तो सेम आइडियाज को हम ज्वाइन करने के लिए हम यूज करेंगे अली स्टडी मैथ्स एंड गॉट गुड मार्क्स। हमने एंड यूज किया है विच शोज द कनेक्टर। okay, to use to represent the similar idea. Next connector which we use is but. It is very important connector and very familiar you will be when we will use this connector to show the contrasting ideas. And तो हम use करते हैं ना similar ideas के लिए, but हम use करते हैं contrasting ideas के लिए, जो different ideas यानी जो एक दूसरे से opposite होंगे तो हम use करेंगे but. For example, Sarah is strict, Sarah is kind. You notice in this sentence at the same time two adjectives are shown, strict and kind. यानी वो एट द सेम टाइम शी इज स्ट्रिक्ट, वो बहुत सख्त भी है और बहुत रहमदिल भी है, अपोजिट क्वालिटीज हैं। तो अपोजिट क्वालिटीज या अपोजिट वर्ड को डिफाइन करने के लिए जब हम कनेक्टर यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं बट। सारा इज स्ट्रिक्ट बट काइंड। ठीक है, नेक्स्ट कनेक्टर जो हम आमतौर पर यूज करते हैं सो। ठीक है, सो हम कब यूज करते हैं, जब हमने कोई रीजन बतानी हो, कोई कॉज बतानी हो, यानी हमारी बात करने का मकसद क्या है, तब हम यूज करते हैं सो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, राइट डाउन द एड्रेस, वी डोंट फॉरगेट। व्हाई वी राइट डाउन द एड्रेस, हम क्यों एड्रेस लिखें, हमने कोई रीजन बतानी है ना, तो इस रीजन को बताने के लिए क्यों रीजन, किस वजह से हम यूज करते हैं, ताकि हम उसको भूल ना जाए। सो वी हैव टू ज्वाइन दिस सेंटेंस, वी विल यूज सो। okay, write down the address so we don't forget it. Understand, whenever you will do the picture description or paragraph writing or any paragraph you want to write or any letter you want to write, कोई भी पैराग्राफ आप लिखते हो बेटे तो ये कैरेक्टर्स आप जरूर यूज करें, तो आपको प्रैक्टिस से यू कैन मेक इट वेरी परफेक्ट। नेक्स्ट कैरेक्टर वी यूज इज or is used when choices are given. When choices are given, and it also used in the form of question. ओके, जब भी चॉइस आपको दी जा रही हो किसी दो चीज़ों के दरमियान में और हमेशा ये क्वेश्चन फॉर्म में आपको दिया जाता है, तो फिर आप और यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, डू यू वांट पिज़्ज़ा और बर्गर। आपने देखा दो चॉइसेस आपको दी गई हैं कि आपने पिज़्ज़ा पसंद किया या बर्गर पसंद किया, और एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क पुट होता है, तब आप यूज़ करेंगे और। ओके, फिफ्थ आपका जो करेक्टर है वो बिकॉज। बिकॉज इज ऑल्सो यूज टू टेल द रीजन व्हाई समथिंग हैपेंड, क्यों ये चीज़ हुई।
ठीक है, बिकॉज वी जनरली यूज मैनी क्वेश्चन आंसर्स इन योर बुक। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपके होते हैं वो आपके वाई की फॉर्म में दिए जाते हैं, जिसका आंसर आपने बिकॉज करके देना होता है। तो आप नोटिस करें कि जब भी हमने किसी की चीज़ की रीज़न बतानी होती है तो हम जो कनेक्टर यूज़ करते हैं वो हम बिकॉज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सैट डाउन बिकॉज आई एम टायर्ड। आप क्यों बैठ गए, क्यों बैठे, बिकॉज क्योंकि मैं टायर्ड था। ठीक है, तो ये सारे कनेक्टर्स हैं आपके 5 कनेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू write a paragraph, to write a picture description or any paragraph you want to write. You have to use these connectors to make your paragraph very appealing or attractive. Okay, when you come to the exercise of page number 48, exercise number 2, I am reading the question. Read the given text, circle the connectors and underline the pronouns. आपने क्या करना है, ये एक्सरसाइज आपको गिवन है इन विच यू हैव टू अंडरलाइन द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नाम आए, प्लेस का नाम आए, थिंग का नाम आए, ठीक है, कोई आइडिया हो तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो नाउन होता है। लेकिन एक ही सेंटेंस में अगर 2 नाउन्स इकट्ठे यूज हो रहे हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे उसको, हम उस नाउन की जगह पर प्रोनाउन पुट करेंगे तो वो आपका प्रोनाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, they. Okay, in this paragraph you have to circle the connectors and underline the pronouns. ठीक है, you have to do it for practice so you can understand it very easily. Our next topic is summary. What is summary? Summary is a brief form of a text. ठीक है, एक पैराग्राफ, एक लेसन अगर आपको दिया गया है, एक स्टोरी अगर आपको दी गई है तो उसको अगर हम शॉर्ट करके लिखते हैं, उसके मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके अगर हम लिखते हैं तो वो आपकी समरी कहलाएगी। अब समरी में जिन पॉइंट्स को हम कवर करते हैं वो ये पॉइंट्स होते हैं, somebody, wanted, but, so, then। यानी जैसे आपने स्टोरी पढ़ी है लाइन एंड द माउस, ठीक है, अब लाइन एंड द माउस को जब आप ब्रीफ करके लिखोगे तो आप उसमें मेन कैरेक्टर्स को पहले डिफाइन करोगे, व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स। समबडी, तो आप डिटेल में नहीं जाएंगे, यू ओनली मेंशन द मेन कैरेक्टर्स, लाइन एंड द माउस। फिर आप उसमें रीजन बताएंगे, व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते थे, व्हाट दे वांटेड। तो आप उसमें थोड़ा सा बताओगे कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था और वो क्या चाहते थे, हमने उसकी 2 लाइनें बताएंगे आप उसकी, तो वो आपकी समरी में होगा। फिर हमने बट बताने यानी रीजन बतानी है कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था, ठीक है। फिर आप जाएंगे सो पर, सो में आप ये बताएंगे हाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम, हाउ इट वाज द हाउ वाज इट वाज सॉल्व्ड, यानी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, ये रीजन उसको उसमें आप मेंशन करेंगे। देन एट द बट व्हाट वाज द एंड रिजल्ट ऑफ दैट स्टोरी, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स आप उस समरी में कवर करोगे तो आपकी समरी कंप्लीट हो जाएगी। यू डोंट हैव टू राइट द अननेसेसरी पॉइंट्स, ठीक है, अननेसेसरी पॉइंट्स आपने नहीं लिखने होते हैं, सिर्फ टू द पॉइंट आपने इन पॉइंट्स को कवर करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो वो आपकी समरी कहलाती है। In your exercise number 4, this is a summary of a story. You have to fill it by the above mentioned words. Felix was a cat. Okay. One day he woke up early in the morning. You have to pick out the words from the above mentioned words and fill the blank. You can practice it by making the summary of the line and the mouse. ठीक है, आपने इसको रीड करना है, आपकी ये प्रैक्टिस है कि आप इस समरी को रीड करो जो फेलिक्स कैट की आपको दी गई है। फेलिक्स इज द निकनेम ऑफ द कैट, इसकी दी गई है, आपने इसको रीड करो और फिर आप लाइन एंड द माउस जो आपने स्टोरी पढ़ी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दी गई है, उसकी आप समरी लिखें टू कवर दैट पॉइंट्स। ओके, इट इज कॉल्ड समरी। Understood? Now we will move towards the next topic. Our next topic on page number 49 is singular plural. Okay? आपने ये 1-2 क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। इट्स नॉट अनफेमिलियर टर्म फॉर यू, बड़ी फेमिलियर टर्म है आप लोगों के लिए। प्लूरल्स क्या कहलाते हैं? सबसे पहले तो मैं नाउन को एक्सप्लेन कराऊं। व्हाट इज नाउन? लुक, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम। किस लिए यूज किया जाता है? इन द प्लेस ऑफ टू रिप्रेजेंट द पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज, ठीक है, वो आपका नाउन कहलाएगा। किसी भी चीज का नाम हो जाए, किसी भी इंसान का नाम हो जाए, किसी भी चीज का नाम हो जाए, जगह का नाम हो जाए, वो नाउन कहलाएगा। अब नाउन कैन बी सिंगुलर एंड नाउन कैन बी प्लूरल। जो सिंगुलर फॉर्म में होगा, जो सिंगल होगा, जो अकेला होगा, वो सिंगुलर नाउन कहलाएगा। और व्हेन देयर विल बी मोर देन 2 नाउन्स, देन इट विल बी कॉल्ड अ प्लूरल नाउन। ओके, ठीक है। आमतौर पर हमारे कुछ रेगुलर नाउन्स होते हैं जो कि सिंपल नाउन्स होते हैं, जिनमें हम सिंपल एस का एडिशन कर देते हैं तो वो हमारे नाउन प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहती हूँ
कार, CAR कार, सिंपल मैं उसमें ऐड कर दूंगी s, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल नाउन, इट इज कॉल्ड कार्स. देयर आर सम important rules which you have to keep it in mind to make the plurals. Okay, number first rule is when a noun which ends with a vowel sound plus y, ऐसा वर्ड जो वॉल साउंड और y के साथ एंड होता है उसके साथ हम हमेशा s का एडिशन करते हैं तो हमारा प्लूरल बन जाता है. फॉर एग्जांपल डे, आपने देखा है y है और y के साथ हमारा वॉल्व लगा हुआ है, वॉल साउंड है, तो हमारी s के साथ एडिशन करके हम उसका प्लूरल बना लेंगे डेज. की, कीज, बॉय, boys, guy, guys, donkey, donkeys. Okay, ये first rule है आपका. Now move towards the second rule. Second rule is it is for the simple regular nouns which you did in your previous classes. car, cars. आप simple s या es का addition करते हैं to make the plurals. Okay, but when there will be any difficult words, then you have to keep it in mind the rules. ठीक है, ये रेगुलर नाउन को बनाने के लिए है कि सिंपल आप s या es का एडिशन कर लेते हैं. लोग डॉग के साथ भी हमने एस का एडिशन कर लिया, बुक के साथ भी, हाउस के साथ भी एस का एडिशन कर लिया, तो हमारा क्या बन जाता है, आपका प्लूरल बन जाते हैं. ओके, नेक्स्ट रूल इज when a noun which ends with the sound s, ch, sh, x और z, जब इन साउंड्स के साथ आपका नाउन एंड होता है तो उसके एडिशन के लिए, उसके प्लूरल बनाने के लिए हम एस का एडिशन कर देते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल बस स साउंड के साथ एंड हो रहा है तो हम एस का एडिशन करेंगे बसेस. च साउंड के साथ मैच, च साउंड के साथ हम लगाएंगे एस. डिश साउंड के साथ हम लगाएंगे एस डिशेस. एक्स साउंड के साथ हम लगाएंगे एस, देन इट विल मेक बॉक्सेस. कोई जी साउंड के साथ, जी साउंड के साथ हम लगाएंगे एस डबल जेड करके क्विजेस. अंडरस्टूड? द नेक्स्ट रूल इज व्हेन अ नाउन एंड विद द कॉन्सोनेंट साउंड प्लस ओ, जब कॉन्सोनेंट साउंड और ओ के साथ हमारा आएगा कोई भी नाउन तो हम उसके साथ पुट करेंगे एस. हीरो, हीरोज, इको, इकोज, टोमेटो, टोमेटोज, पोटैटो, पोटैटोज. ठीक है, कुछ हमारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें हम टू वर्ड्स हैं हमारे पास, पियानो और फोटो, इनके साथ हम एस का एडिशन नहीं लगाएंगे. ये एक्सेप्शनल केस है. कुछ इंग्लिश में अल्फाबेट्स, कुछ इंग्लिश में वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एस का एडिशन नहीं करते. ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा व्हेन सम वर्ड्स एंड विद एफ और ई एफ, देन टू मेक द प्लूरल वी रिमूव एफ एंड वी विल मेक एड VES टू मेक द प्लूरल. लीव, लीव्स, VES. नोटिस हमने एफ को हटाकर VES लगा दिया. वुल्फ, एफ को हटाकर हमने VES लगा दिया है. लाइफ, एफ को हटाकर हमने VES लगा दिया. नाइफ, एफ को रिमूव करके हमने VES लगा दिया है. रिमूव नाइव्स. ओके, द नेक्स्ट रूल इज व्हेन अ नाउन एंड विद वॉल प्लस कॉन्सोनेंट, वॉल प्लस ओ, ऐसा नाउन जो कि हमारा वॉल साउंड प्लस ओ के साथ एंड हो रहा है तो उसके साथ हम सिर्फ एस का एडिशन कर लेते हैं. ओके, जू, जूस, आपने देखा सिर्फ वॉल साउंड है और साथ ओ लगा हुआ है. ये भी वॉल साउंड है, ये भी ओ है, तो हमने एस का एडिशन किया है. रेडियो, आई भी आपकी वॉल साउंड है और आगे ओ आ रहा है तो हमने सिंपल एस का एडिशन किया है. स्टीरियो, स्टीरियोज, वीडियो, वीडियोज, कैंगरू, कैंगरूज. ओके, अंडरस्टूड? This is a full chart of the rules. All rules are mentioned over there. ये full chart है बेटा, इसमें given है, तमाम rules इसमें mention है. You can take the screenshot of that and keep it in mind to make the plurals, so you can get command over it. Okay, I hope you understood plurals very easily. If we move towards the page number 49, exercise number 2, you have to complete this exercise. Yes, we have to complete this exercise. Look, complete the given table. Some singulars are given and you have to complete the plurals, and some plurals are given and you have to make the singular of that word. Okay, dish, you have to make the plural of that word, dishes, because when sh sound is given then you have to put es. Lamb. Okay, some are regular nouns in which you have to only add s. Plural is given and you have to write the singular of that word. City, you noticed y is given with the consonant sound, then we will add IES, cities. सेम एक और बात आप याद रखो बेटे कि आप प्लूरल सिर्फ उनके बना सकते हैं जो कि आपके काउंटेबल नाउन्स होते हैं.
जिनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उनके आप प्लूरल बना सकते हैं। अदरवाइज अनकाउंटेबल जो नॉन काउंटेबल जो नाउन होते हैं उनको तो आप प्लूरल नहीं बना सकते, उनको आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो हाउ कैन यू मेक द प्लूरल? ठीक है, जैसे फ्रेंड्स को आप काउंट कर सकते हो, तो यू कैन मेक इट प्लूरल वेरी इजीली। बेबी, बेबीज, वाई विद द कॉन्सोनेंट साउंड है तो दैट्स वाई आई पुट IES। ब्रश श साउंड पर एंड हो रहा है, दैट्स वाई वी विल पुट ES। अंडरस्टूड? आई होप आपको सिंगुलर प्लूरल बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओमेटिक आर्टिकल्स। सबसे पहले तो मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊं। व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स आर द वर्ड्स ए, एन और द विच वी यूज बिफोर द नाउन। ठीक है, ए एन आपका जो आर्टिकल्स हैं ये आपके ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके सिंगुलर नाउन को। जब भी आपका सिंगुलर नाउन आएगा तो उससे पहले जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड से नाउन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले हम ए लगाएंगे, और जो आपका वॉल साउंड से नाउन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले हम एन लगाएंगे। ठीक है, और द जो है वो आपका यूज होता है ऑटोमेटिकली किसी भी पर्टिकुलर थिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे ए और एन से रिलेटेड। ठीक है, ए और एन, ए यूज करते हैं वॉल्स कॉन्सोनेंट नाउन जो स्टार्ट होता है वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से उससे पहले लगेगा, और एन आपका लगेगा आपकी वॉल साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ हमने क्या करना है, ओमिट करना है। ओमिट मीन्स कि हमने उनको कट करना है, हमने ए एन कब यूज नहीं करना। आपको ये तो पता है कि ये ऑलवेज यूज ए और एन विद अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, क्योंकि ए और एन दोनों का मतलब होता है एक। लेकिन जब व्हेन वी मेक द प्लूरल ऑफ दैट नाउन देन हाउ कैन वी पुट ए और एन? हम नहीं पुट करेंगे उसको, क्योंकि ऑटोमेटिकली ए एन सिंगुलर के साथ लगता है, लेकिन जब प्लूरल आ जाएंगे तो हम उसके साथ उसको नहीं लगाएंगे, हम ओमिट कर देंगे यानी कट कर देंगे उसको। ठीक है, रीड द गिवन सेंटेंसेस ओके विद मी। आई सॉ ए लायन इन द जू। यू कैन सी a lion. Lion is a noun and it is countable. 1 line, 2 line, 3 lines, 4 lines. Lions. When there is a one line, it is not in the form of plural, then we marked A. But when it is in the form of plural, lions, then you notice we didn't mention A over there. ठीक है, यहाँ हमने omit कर दिया है, हमने A को because it is in the plural form. यानी जब भी प्लूरल फॉर्म में आपका नाउन आएगा तो आपने ओमिट कर देना है ए और एन को। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, पेज नंबर 50। Exercise, look at the exercise. Exercise number 4, rewrite the given sentences in your notebook, omitting articles A और N where necessary. आपने omit कर देना है, कट कर देना है A और N को जहाँ पर आपको ज़रूरत उसकी पेश नहीं आ रही। और आपको मैं बता चुकी हूँ A और N हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है, और काउंटेबल नाउन होगा। और जब सिंगुलर नाउन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो हम ऑटोमेटिकली A और N कट कर देंगे। ठीक है, नंबर 1 इज गिवन फॉर यू। Cats like to eat mouse. Notice cat is in the form of plural. Then how can we put a? हम a put नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि a cat is in the form of plural. ऑटोमेटिकली a कट हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? Cats like to eat mice. Okay. Next sentence is I saw a lions and an ostrich in the zoo. अब आप देखें, in this sentence lions is in the form of plural. Then when it is plural, then how can we put a? No, we will omit the a. But with the ostrich, an is mentioned over there. Why? Because ostrich is not in the plural form, it is in the singular form. Then we will omit only a over there. I saw lions and an ostrich in the zoo. Okay. Next is a mouse is playing with ducks. Ducks is again in the form of plural. Then we will automatically omit a, because ducks plural, and with plural no a is mentioned over there. Rabbits love carrots. Carrots are all are also in the form of plural, so we will omit a. Rabbits love carrots. Okay, understood? When we omit the a or n, when there is nouns in the plural form. Okay, next topic is read the given sentences. These are pronouns. ठीक है, ये we already did it. Only you have to keep it in mind that how pronouns are used in these sentences. Asim is a boy. He has two boys. He is used in place of Asim, so he is called pronoun. Same with here. Ikra is a girl. Ikra is a noun, and when we use pronoun in place of Ikra, then we use she. Understood? She is a pronoun. Now look at here. Asim and Ali are friends. Okay, two nouns are given over there. When two nouns are given, then you will use they. They in the form of pronoun. Okay, understood? Next topic is use of because. Because we did previously.
in the previous exercise, because is used to show the reason. जब भी हमने कोई रीज़न बतानी होती है, किसी भी सेंटेंस में कोई बतानी होती है वजह, तो हम यूज़ करते हैं बिकॉज. ठीक है, जैसे I sat down. Why I sat down? Because I am tired. क्योंकि मैं थक गया था. आपने प्रैक्टिस क्या करनी है बेटे कि आपने देखो एक्सरसाइज आपकी गिवन है पेज नंबर 50 पर. राइट एक्सरसाइज नंबर 6, राइट 5 sentences of your own using because to express reason. आपने 5 sentences खुद बनाने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है कि हाउ यू कैन यूज बिकॉज. ओके, our next topic on page number 51 is to write the information about your pet animal. Okay, think of your favorite animal, draw its picture and answer the following question to describe it. Okay, आपको ये टॉपिक के साथ बॉक्सेस गिवन है, मैंने इसको फिल कर दिया, बट यू हैव टू फिल इट योरसेल्फ. You have to draw the picture of your favorite animal and you can write the name over there, and then you have to fill the information according to the question. First question is, what is the color of your favorite animal? I wrote black and white. Next question is, where does it live? It lives in my home. Simple question is given over there, you have to practice it so you can answer it and you can write it in the paragraph. Next question is it big or small? It is small animal. It is a small animal. What does it eat? It eats meat and drink milk. Okay, you notice मैंने यहाँ कनेक्टर यूज किया है एड. क्यों? क्योंकि सेम आइडिया पेश किया जा रहा है खाने वाली चीज के बारे में, एडिबल थिंग के बारे में, मीट एंड मीट और मिल्क के बारे में बात की जा रही है, तो इसीलिए मैंने कनेक्टर जो यूज किया है एंड यूज किया है. इसी तरह अगली हेडिंग है, इज इट अ पेट और वाइल्ड एनिमल. आपने देखा है इसमें चॉइसेस गिवन है, पेट है या वाइल्ड एनिमल है. चॉइसेस ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फॉर्म. ठीक है, दैट्स व्हाई और कनेक्टर इज यूज्ड ओवर देयर. इट इज अ पेट एनिमल. नेक्स्ट इज, व्हाई डू यू लाइक दैट एनिमल. आपने रीजन बतानी है कि इट इज, आप क्यों पसंद करते हो इसको. बिकॉज इट इज वेरी क्यूट एंड फ्लफी. आई फील्ड इट योरसेल्फ. व्हाट इज योर टास्क? You have to practice it by writing the paragraph about that information. Okay, now write the information in the form of a paragraph in your notebook. आपने क्या करना है, आपने बेटा अपनी वोकैबुलरी को और अपनी राइटिंग इंप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन तमाम इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है बाय यूजिंग द कनेक्टर्स. ठीक है, कनेक्टर्स को यूज करके आपने इसको पैराग्राफ फॉर्म में इन द समरी वे में बताना है. और समरी भी मैंने आपको बता दी है कि 5 पॉइंट्स को कवर करती है. somebody wanted but so then. ठीक है, कौन सा करेक्टर है, क्या करता है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में आपने इस पूरी स्टोरी को, इस पूरे जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में एक पैराग्राफ की फॉर्म में कनेक्टर यूज करते हुए आपने फिल करना है. एंड कीप प्रैक्टिसिंग इट. आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ये जो कमांड होगी करेक्टर्स को यूज करने की और पैराग्राफ राइटिंग की, ये इन्हांस होगी. अंडरस्टूड? होप वी डिड दिस चैप्टर वेरी क्लियरली. ओके, लाइन एंड द माउस हमारा कंप्लीट हो गया है. जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी रिलेटेड टू दिस चैप्टर आई हैव गिवन. फिर भी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, you can give me information about that chapter or any query if you have related to this chapter, you can send it to the comment box. Okay, I hope you understood very well. Okay, take care. Allah Hafiz.